4 बार मैं लड़ी है, मेरा 5वां इलेक्शन है। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ। मुस्तफ़ा साहब दोस्त थे उनके, हमारे फैमिली रिलेशन थे, फैमिली की तरह थे। कैप्टन साहब एक बार मुस्तफ़ा साहब को बुला के कह देते कि मुस्तफ़ा मेरी मजबूरी है, मैं आपको डीजी नहीं बना पा रहा हूँ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारो। मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूँगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर है ना, उन्होंने धाकड़ तरीके से अपनी नौकरी की है और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो तो उन लोगों से नहीं डरे, ये चंद फितनों से उन्होंने क्या डरना था। मैं इसको ज़िम्मेदार कुछ चैनल्स को भी मानूंगी कि उन्होंने गलत तरीके से इसका प्रचार किया। और सीएम कैंडिडेट है, उनको दूरी से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? जब पिछली बार की इलेक्शन लड़े थे, इन्होंने पोस्टर लगाए थे आम आदमी पार्टी की 100 सीटें लगाए थे ना, और आई कितनी? 20 आई, और 20 में से गए कितने, वो भी इस टाइम पे। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ 2022 ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈंने ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹਾਂ, 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। तो मेरा जो वादा सी मलेरकोटला नूं ज़िला बनाउण दा और मैडिकल कॉलेज लैके आउण दा, ज़िला मेरा बन गया है। मैडिकल कॉलेज आ गया है, मंजूरी भी आ गई है, ज़मीन भी मिल गई है और सारी तैयारी है। बाकी होर जिहड़े विकास दे काम और इस तो इलावा कॉलेज जैसे लड़कियों दा कॉलेज और जमालपुरा में बन रही है उसकी बिल्डिंग, और अभी अपना बस स्टैंड नया बन रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो हमारे चल रहे हैं हमारे शहर में। ये हमारा शहर बहुत पुराना शहर है, पुराना शहर होने के बावजूद ये इसकी गलियां बहुत ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी और छोटी छोटी हैं। यहाँ ना बरसाती पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि जब बरसात होती थी तो सारा शहर समझ लो एक पानी की उसमें आ जाता था चपेट में, लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी परेशानी होती थी। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा, मेरे बग्गा साहब नाल सलाह करके गई सी मैं कि मैं एक मंग करूँगी। देखो जो ज़िला बना है, जब कैप्टन साहब थे सीएम, वो तब भी कांग्रेस पार्टी के सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से सीएम थे। और उस टाइम राहुल गांधी जी ने उनको बोला था, मेरा वादा था इलेक्शन का, और राहुल गांधी जी ने उनको बोला
कि आप इनका वादा है वो पूरा करें। तो फिर सीएम जब कांग्रेस पार्टी के थे तो उन्होंने मेरा वादा पूरा किया है। मैं इसका थैंक्स करती हूँ राहुल गांधी जी का, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी की बात को मान के मेरा ज़िला बनाया। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? देखो मैं फैसले, हाँ नहीं, जो मैं फैसले हमने लिए, जो आपने गिनाए हैं, वो देखो आप कहीं ना कहीं तो सच है ना। जिस बात पे मैंने इस्तीफ़ा भी दिया, जिन चीज़ों को लेके मैंने विरोध भी किया, तो कहीं ना कहीं ये सच है ना कि हमें नौकरियां देने की बजाय आप हमें हमारे उन बच्चों को दें जिनका हक बनता है, उनको आप नौकरियां दें। विधायकों के बच्चों को या उनको नौकरियां देने का कोई ऐसा मैंने वहाँ विरोध किया जहाँ पे उनका हक नहीं था। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब के हम पहले दोस्त थे, मुस्तफ़ा साहब दोस्त थे उनके, हमारे फैमिली रिलेशन थे, फैमिली की तरह थे। कैप्टन साहब, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था जब कैप्टन साहब हमारे घर पे डिनर पे नहीं थे, और कोई पार्टी ऐसी नहीं होती थी जब हम सीएम साहब के यहाँ डिनर पे नहीं होते थे। लेकिन जब किसी का हक होता है, अगर किसी का हक मारा जाए तो तकलीफ़ तो होती है ना, तो दुख तो होता है ना। क्या फिर आप अपनी तकलीफ़ को महसूस नहीं करोगे? कैप्टन साहब ने नहीं डीजी बनाना था, मत बनाते, लेकिन एक बार मुस्तफ़ा साहब को बुला के कह देते कि मुस्तफ़ा मेरी मजबूरी है, मैं आपको डीजी नहीं बना पा रहा हूँ। तो बस इतनी सी बात थी। उन्होंने तो राब्ता ही तोड़ लिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जैसे पता ही नहीं क्या होता है। इतने सालों की दोस्ती ऐसे थोड़ी ना ख़त्म की जाती है। की मजबूरी की रही होगी, ये तो कैप्टन साहब ही बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। समझते ऊपर मुझे तो पता नहीं, मैं क्या समझ सकती हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये क्यों हुआ। हमारे अच्छे रिश्ते थे, सब कुछ था, और उन्होंने एकदम से ऐसा कि मतलब सरकार बनी और राब्ता ख़त्म कर दिया, ये तो फिर एक मतलब प्रस्ती हुई ना। ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੈਮ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਊਂ। देखिए, एक बात सुने, मैं 4 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ और 3 बार मैं जीती हूँ, तो क्या मुस्तफ़ा साहब यहाँ थे? मुस्तफ़ा साहब थे यहाँ? ये 5वां इलेक्शन है। अब मुस्तफ़ा साहब डीजीपी अब अपनी उसमें सरकारी जॉब में नहीं हैं, तो वो मेरी मदद कर रहे हैं। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। नहीं, देखिए एक बात सुने, जब आप आराम से कहीं जा रहे हैं या आप कहीं गाड़ी में रुके हुए हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसे हमला करे और गलत तरीके से आपको टॉन्ट करे, तो एक पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर है ना, उन्होंने धाकड़ तरीके से अपनी नौकरी की है और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो तो उन लोगों से नहीं डरे, ये चंद फितनों से उन्होंने क्या डरना था, लेकिन उन्होंने फिर भी लिहाज की, और लिहाज करने के बाद उन्होंने जाके वहाँ पे ये माइक पकड़ के कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं फितनों का जलसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये बात कही, और अगर उनके चलो वो हिंदू के साथ जोड़ के वो किया गया, हालांकि उसमें वैसा कुछ नहीं था। देखिए, ये बहुत गलत प्रचार किया गया और मैं इसको जिम्मेदार
कुछ चैनल्स को भी मानूंगी कि उन्होंने गलत तरीके से इसका प्रचार किया और इसके जिम्मेदार वो हैं। आपकी भाषा में उसका मतलब शरारती उतरा फितनों का? हाँ, जो फितना हम लोग आम यूज़ करते हैं फितना के, ये तो फितना है, इससे बच के रहना। फितनों का मतलब है शरारती अंसर या फिर शरारत करके मतलब ख़राब करने वाले लोग। इसके अलावा अगर मैं बात पूछूं आपसे कि आम आदमी पार्टी का कितना असर मानते हैं? पिछली बार यहीं से आपके जो रियल ब्रदर थे वो आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी का भगवंत मान आपके साथ वाले इलाके में उनको जो सीएम कैंडिडेट है उनको दूरी से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? देखें, एक बात सुने, जब पिछली बार थी इलेक्शन लड़े थे, इन्होंने पोस्टर लगाए थे आम आदमी पार्टी की 100 सीटें लगाए थे ना, और आई कितनी? 20 आई, और 20 में से गए कितने? वो भी इस टाइम पे। तब तोड़ते हैं एमएलए अपनी पार्टी, तब छोड़ते हैं जब नई सरकार बनती है, तब तो वो किसी न किसी वजह से अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे के साथ सरकार के साथ चले जाते हैं। लेकिन अब एन लास्ट में आके उनके कुछ एमएलओ ने हमें ज्वाइन किया, तो वो क्या समझते हैं? आम आदमी पार्टी को खुद पता होना चाहिए कि हमारे एमएलएस जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारी नीति और हमारी नीयत ठीक नहीं है। हमारे एमएलए हमें छोड़ के चले गए हैं और वो भी इस टाइम पे। तो उस टाइम जब कहा था इन्होंने 100 सीटें आएंगी, तब 20 आई, उसमें से भी एमएलए छोड़ गए इनके। तो अब तो वो सोच लें कि क्या होने वाला है। उस टाइम मेरे ब्रदर मेरे सामने थे, लेकिन उनके आप निकाल के देख लें उनका रिकॉर्ड, उनको कितने वोट मिले थे। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं, मेरा मुकाबला इस बार उनसे नहीं है। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, जब वो मैं हारी थी, मुकाबले में मेरा कहने का मतलब ये है कि मुकाबला कि वो भी लड़ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक पार्टी से वो भी लड़ रही हैं। उस वक्त जब मैं हारी थी, बहुत कम वोटों से हारी थी, और उन्होंने लोगों को गुमराह किया था। बाहर से आए थे, नए थे, लोगों को लगता था शायद ये भी रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं और हो सकता है कहीं ये हमारे से ज़्यादा काम यहाँ पे करेंगे। लेकिन उन्होंने दिखा दिया अपने 5 साल में कि हमने ये किया है, और फिर दूसरी बार उनको टिकट भी नहीं मिला। उनकी पार्टी ने उनको टिकट भी देना पसंद नहीं किया। तो इस बार किसके साथ आप मुकाबला समझ रहे हो कि किस पार्टी के साथ? चलो आप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? देखें, मेरा मुकाबला तो मैं खुद किसी से मुकाबले करके नहीं चलती हूँ। हमारा काम है अपनी पार्टी की नीति, नीयत और अपनी पार्टी के काम बताना, और उसी बेस पे हम लोग अपना काम बता के उसी बेस पे हम वोटें मांगते हैं। कह रहे हैं कि हाईकमान कांग्रेस की जो विधायक है उनसे पूछ रही है कि सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। आपकी वोट चरणजीत सिंह चन्नी को जाएगी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू? देखें, जब मेरी पार्टी मेरे से पूछेगी मैं उस वक्त उनको बताऊंगी। जनता भी जानना चाहती है। जनता को पता है हमारे ख्यालात क्या हैं। देखें, सिद्धू जी का जो पंजाब मॉडल है वो भी एक तरह से, अगर आप एक एक चीज़ को देख के चलें तो वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। और चन्नी जी का अगर मैं देखूं, 3 महीने का काम, 3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा ही अरसा, उनको बहुत कम अरसा मिला है। अगर मैं उस काम को देखूं तो वो भी कहीं कम नहीं है। दोनों ही एक से एक हैं, नहले पे दहला हैं। एक काम करने वाला है, एक ने काम किया है, और दूसरा अपने मॉडल को रख रहा है कि मेरा पंजाब मॉडल ये होना चाहिए, ऐसे हम काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाईकमांड नहीं दसो? नहीं, वो मैं हाईकमांड मेरे से पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन जिन्हों का कहना है कि मैं पहला भी काम किए ने, मैं मलेरकोटले ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।